समांथा रुथ प्रभु को कौन कौन जानता है? समांथा, साउथ इंडियन एक्टर, रिसेंटली न्यूज में क्यों थी? So the condition she is suffering from is mitosis. So instead of Samantha Ruth Prabhu, our focus will be on mitosis. Mitosis is belong to General Study Paper 3, Science and Technology, and autoimmune disorders. Autoimmune disorder is a part of biology disease. So you need to know whenever you are reading a news, it's belong to which subject, which paper, which subtopic. Subject is Science and Technology, General Studies 3, Biology and Disease, and a autoimmune disorder. So mitosis and mitosis both हैं. Mitosis आप में से most of को पता है कि meiosis and mitosis are the cell division. I will not focus on that because it's a simple concept. Like this is एक cell will divide into two cells. This is the mitosis, simple. And this myositis and mitosis are different. Don't confuse in the exam. कोई question भी आता है तो आप लोग confuse करके statements में ये भी होगा और as a autoimmune disorder भी होगा. So before focusing on myositis, I will let you know what is an autoimmune disorder. उस autoimmune में there is a word immune. So what is the immunity and how our body resists from the pathogens, virus and bacteria through immunity. So anybody please let me know the definition of immunity. What is immunity? Body's capability to fight against disease. Yeah, it's a body capability to fight against disease. There are two types of immunity, passive immunity and active immunity. And these are further divided. We will study in the like a special class on this immunity types and the different type of immunity. So here you need to know what is the exactly immunity. At the COVID time, आप लोगों ने देखा होगा, the person having the highest immunity is not suffered from the COVID. आपके घर में भी केस रहा होगा कि I from 5-6 member family, 2 people को नहीं हुआ, 4 को हो गया. The reason behind it, the other 2 have the strong immunity rather than the 4. Even the some cases में it was carrier. Test में result positive है, but the symptoms is not shown to that person. So that is also the whole game of immunity. So this is the about immunity. Now come to the autoimmune disorder. What is the autoimmune? Auto, self. Auto का means यहाँ पे self है. Immune. Immune is our immune system, and disorder is about like any disease. When अपने immune system का एक फायदा है, it can recognize the foreign cell as well as the own body healthy cell. When it unable to recognize the which is the foreign cell or which is the own cell, or it start against the body cell itself, so it's called the autoimmune, means acting on the our immune system as well. Means like it's a good cells को ही ये directly affect करना शुरू कर देता है body के अंदर. So this is known as the autoimmune diseases. When our immune system start targeting our body healthy cell is known as the autoimmune disease. So myositis is a autoimmune disease where the immunity system affecting the muscles of the body. Myositis mean, myo here means muscle, means this disease is related to the muscle of the body. So you can write the myositis, a disease which is related to the inflammation of the muscle. So this is the overall idea कि हम क्या पढ़ेंगे इसके बारे में. तो इसमें हम mainly focus करेंगे myositis के बारे में. What is myositis? What is the cause behind myositis? Prevention, symptoms, types, and how we can diagnose a person is having a myositis or not. So these are the 5-6 criteria on the basis of which we will go through the myositis. This is having a 3-4 types of myositis. We also look into that. So let's first come to the autoimmune disease. It's not like only there is a single autoimmune disease. There are multiple hundreds of autoimmune diseases for the different part of the body, like for the brains, like the bloods, and there are different parts. Like for the brain, आपने multiple sclerosis का नाम सुना ही होगा. Multiple sclerosis is the brain disease, जिसमें degeneration of brain cell होना शुरू हो जाता है. And for the blood, leukemia, mainly it's a type of cancer as well as a autoimmune disease. For the skin, psoriasis, कुछ आपने देखे होंगे like कि skin पे थोड़ा थोड़ा गड्ढा टाइप बनना शुरू हो जाता है. Psoriasis like कि छोटे छोटे आपको दिखने शुरू हो जाएंगे. It's known as psoriasis. It's also a autoimmune disease. And the for lungs is known as fibronoma.
Fibronoma, when it's our autoimmune system start affecting our lungs, it's known as fibronoma. Fibronoma is fibrous, ये alveoli होता है lungs में, basic unit of lungs, alveoli that start affecting the alveoli system and start affecting our lung system. तो ये पूरा जो disease है, these are the autoimmune disease, and for the different part of the body there are different autoimmune disease. तो I hope कि आपको पता लगे what is the actually the autoimmune. Autoimmune, our immune system is affecting our body, our immune system affecting the healthy cell of our body. This is the autoimmune system. In our body there is a resistance mechanism. Whenever a foreign particle means it's maybe bacteria, it's maybe virus affecting our body, so our skin activate a mechanism, it identify a foreign particles known as virus and the bacteria. These are the known as biology language, we know that the foreign particles or the foreign like the bacteria and the viruses. So it activate our immune system. अभी आप देखोगे कि सडन आपकी बॉडी का टेम्परेचर कई बार इंक्रीज हो जाता है, लाइक कि गला अभी सर्दी की वजह से पोल्यूशन की वजह से गला खराब हो जाता है. इट्स ऑल अबाउट द इम्यूनिटी, कि जो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है. लाइक कि वायरल फीवर्स में क्या होता है कि वायरल फीवर में आपको एकदम से अचानक से तेज बुखार आ जाता है, तेज फीवर हो जाता है. तो उस वायरस को मारने के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए और जो बॉडी मैकेनिज्म है, रिलीज increase the temperature of the body so that our body can be prevented from the virus. But हम इतने ज्यादा एंटीबॉडी, अब हमने इतने सारा ड्रग्स लिए हैं, ड्रग्स मीन्स यहाँ टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं जो हम लेते हैं, ठीक है. तो उसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी कम हो गई है एंड आवर बॉडी वी आर नॉट प्रोटेक्टिंग, तो हमें टैबलेट्स लेना पड़ता है उस फीवर को और कम करने के लिए. बट इट इज अ नेचुरल इफेक्ट ऑफ द आवर इम्यून सिस्टम. जो नेचुरल मैकेनिज्म है अपनी बॉडी का, वो पहले इनिशियली वो एक्ट करता है, उसके बाद ही हम जो भी इसके बाद ट्रीटमेंट्स होते हैं वो लेते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑटोइम्यून. द ऑटोइम्यून इज यूजुअली गार्ड अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरसेस. आवर इम्यून सिस्टम अटैक आवर बॉडी. जो हमने देखा कि इसमें हमारा इम्यून सिस्टम अपनी बॉडी को ही अटैक करेगा. यहाँ पे मेनली वी आइडेंटिफाई द फॉरेन सेल एंड द ओन सेल. फॉरेन सेल जो बाहर से हमारी बॉडी में एंट्री करेंगी, बैक्टीरिया वायरस. ओन सेल जो गुड सेल से जो प्रोटेक्ट करती है हमें डिजीज के अगेंस्ट, वो हमारी ओन सेल है, लेकिन ऑटोइम्यून में इट अफेक्ट आवर बॉडी. So this is all about the autoimmune. Now let's come to the myositis. What is myositis? Myositis is the inflammation of muscles. Means like normal muscles हैं, वहां पे इन्फ्लेशन होता है. तो उस इन्फ्लेशन के केस में यू कैन नॉट मूव मसल. अगर आप मूव करोगे, इवन चलने में भी, बैठने में भी, सोने में भी, इट्स कोज अ पेन इन द बॉडी. तो यहाँ पे आप देखोगे इट्स अ नॉर्मल मसल. यहाँ पे स्ट्रेचिंग नहीं है बिल्कुल भी, इन्फ्लेमेशन नहीं है बिल्कुल भी, बट दिस इज अ स्ट्रेन्ड मसल. लाइक ये हमारी नॉर्मल मसल है, दिस इज द नॉर्मल मसल. बट आफ्टर माइटोसिस दिस मसल शेप चेंज एंड इट्स एनलार्ज ड्यू टू इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन की वजह से ये हमारी मसल्स लार्ज हो जाएंगे. अगर यहाँ पे हमारे मायोसिटिस हुआ है, तो अगर हम ऐसे भी करेंगे बॉडी को, कुछ भी करेंगे, तो मूवमेंट की वजह से जो पेन होगा वो इस डिजीज के अंदर होता है. तो दिस इज नोन एज द मायोसिटिस. ठीक है. तो इट्स अ बेसिकली ऑटोइम्यून डिसऑर्डर. हमने देख लिया कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्या होते हैं. आउटसाइड ऑफ गेट इन्फ्लेम्ड कोजिंग इंजरी. जो ये होगा, जितने भी हेल्थी टिश्यूज होंगे, जितने बॉडी के हेल्थी जब मेजर एरिया रहते हैं, एल्बो, नी, यहाँ पे हमारे नेक, तो ये मेजर एरिया रहते हैं. लाइक हिप्स, दीज आर द मेजर एरिया फॉर द मायोसिटिस. तो इसीलिए चलने में, बैठने में देयर इज अ मेजर प्रॉब्लम इन दिस डिजीज. तो किसी को आपने देखा कि अल्जाइमर के रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा. रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसमें लाइक कि हमारे नी की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है. इट्स अ बोन रिलेटेड डिसऑर्डर. सिमिलरली दिस इज अ काइंड ऑफ दैट डिसऑर्डर. इसमें मसल्स का इन्फ्लेमेशन में इशू है, वहां पे बोन्स रिलेटेड इश्यू होते हैं. बोथ आर द ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स. तो सीटिंग पोजीशंस में चेंजिंग द स्लीप पोजीशंस, तो ये सारे इसके मेजर इफेक्ट्स हैं. एंड द टारगेट, लाइक कि हमारे इंडिया में या फिर इंटरनेशनली हम देखेंगे, इन 1 लाख पॉपुलेशन देयर आर 4 to 20 केसेस. 4 से 20 केसेस ऑन एन एवरेज 1 लाख पॉपुलेशन में रहते हैं. तो दिस इज द मेजर की 4 to 20 केसेस रहते हैं. बट इज मायोसिटिस. मायो मीन्स मसल, मीन्स द इन्फ्लेमेशन ऑफ मसल. द केसेस देखा,
नाउ द हाउ द इम्यून सिस्टम प्रिवेंट इट, उसमें क्या क्या उसका इफेक्ट होता है. सो दिस इज द मायोसिटिस. नाउ व्हाट इज द कोज बिहाइंड द मायोसिटिस, एग्जैक्टली कोज क्या है. आज तक इसका एकदम बिल्कुल आइडेंटिफाइड नहीं है, लाइक फीवर वायरस की वजह से हो रहा है, मलेरिया किसी की वजह से हो रहा है, डेंगू किसी की वजह से हो रहा है, वी नो दैट. बट फॉर द मायोसिटिस इट नॉट आइडेंटिफाइबल कि एग्जैक्टली होता किस वजह से है. देयर कैन बी द मल्टीपल रीजन फॉर द मायोसिटिस. तो अगर ऐसी डिजीज होती है तो उसको हम कहते हैं इडियोपैथिक डिजीज. अगर कोई टर्म आती है, यू कैन राइट इडियोपैथिक डिजीज. Idiopathic disease, the cause of mitosis is known, therefore considered as idiopathic. Idiopathic का means जिसका हमें disease cause नहीं पता है, what is the exactly the cause behind it. So it is known as the idiopathic disease. It is usually caused by our immune system itself. Immune system का action किस वजह से भी हो सकता है, maybe like viral infection की वजह से हो सकता है, या फिर कफ की वजह से भी इट्स कैन बी इरिटेशन इन द आवर नेक एंड कोज द कफ की वजह से. वायरस एंड पैरासाइट्स की वजह से भी हो सकता है. जो लोग इंटेंस लिकर लेते हैं, जो अल्कोहल ज्यादा पीते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है. इवन यू कैन लिंक इट विद द HIV एंड द कैंसर. जिसको कैंसर है या HIV की प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें भी ये कंडीशन देखी गई है कि इट कैन अफेक्ट इन्फेक्ट द बॉडी एंड कोज द मायोसिटिस. तो दीज आर द मेजर causes behind the myositis. Exactly cause नहीं पता है कि it's causing by the X bacteria, X virus like the dengue, मलेरिया, या फिर HIV का पता है कि हमें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV से होता है. तो उसकी वजह से exactly we don't know कि किसकी वजह से होता है. But the major thing about immune system, health issue, common cold, कोई भी डिजीज हो सकती है, HIV हो सकता है, कैंसर हो सकता है, इनटेक ऑफ लिकर हो सकता है. सो दीज आर द मेजर कॉजेज ऑफ मायोसिटिस. तो किसी भी स्टेटमेंट्स में आपसे पूछा जा सकता है, नंबर 1 इट्स ऑटो इम्यून, सेकेंड इडियोपैथिक, थर्ड में इट मे बी द नेम ऑफ द वायरस, नेम ऑफ द बैक्टीरिया कैन बी गिवन, इट्स caused by this bacteria, this virus. So you need to identify it's not caused by the same bacteria or any bacteria or any virus. So you can tick the statements which one is the correct one. So now let's move the type. There are the type of myositis. There are the mainly the four type of myositis. One is the polymyositis. Second is the dermamyositis. Fourth is the inclusion body myositis, and the fourth is the toxic myositis. So these are the different type of myositis. Polymyositis. Polymyositis, it's a simple type of myositis जहां पे tissue will inflamed, inflammation हो जाती है मसल्स में. Inflammation, muscles will inflame. The simple myositis को भी we can say the polymyositis. But इसमें area defined है कि shoulder areas में होगा, या फिर आपके hips areas में होगा, या फिर thigh muscles में होगा. The area is defined the polymyositis, and it is affected mainly female and the young people. The polymyositis mainly affect the female and the young people. Now, second is the dermamyositis. What is the mean by derma? Derma means skin. बाकी सारी चीजें पोलीमायोसिटिस की तरह सेम है, बट द इफेक्ट इज ऑल्सो सीन ऑन स्किन. रैशिश आना शुरू हो जाते हैं, लाइक द मेन एरिया इज आईज, आपके हैंड्स हैं, थाइज हैं, तो वहां पे रेड रेड कलर के छोटे छोटे पैचेज आना शुरू हो जाते हैं इन डर्मामायोसिटिस. इन डर्मामायोसिस देयर विल बी द पैचेज एंड द स्किन रैशेस ऑन योर स्पेसिफिक बॉडी एरिया. तो दिस इज नोन एज द डर्मामायोसिटिस. थर्ड इज द इंक्लूजिंग बॉडी मायोसिटिस. ये मेनली आपकी नोट चिकन पॉक्स, स्किन लाइक आपको कई हीट की वजह से रेड हो जाता है पूरा हाथ कई बार, या फिर छोटे जो उसकी वजह जो रेडनेस दिखेगी स्किन पे, इट्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल स्मॉल डॉट्स इकट्ठा एक साइड. और जो हमारा चिकन पॉक्स होता है वहां पे स्वेलो होता है, छोटा छोटा स्वेलोइंग स्किन्स में, स्वेलो लिक्विड होता है उनके अंदर. बट यहाँ पे there will be certain mark on your body. I will show you the image, the difference. Rashes mainly we can show the rashes. So this is the difference between जो दोनों में differences है वो है. So third type is the including body myositis. इस third type में IBM is known as IBM, including body myositis. There is a swallowing of this area, swallowing of food canal कह सकते हैं, जहां से हम लेते हैं वो esophagus, affecting the mainly the esophagus, the neck area. यहाँ पे inflammation बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से intake of food बहुत मुश्किल हो जाता है. You cannot intake of food, उस वाले पार्ट का inflammation शुरू हो जाता है.
This is not the IBM. And third is the toxic one. You can relate the toxic one, maybe because of the liquor, maybe because of the alcohol. हाई मतलब बहुत ज्यादा इनटेक के बाद, इट्स नॉट लाइक कि आप बहुत कम है, बट बहुत ज्यादा इनटेक के बाद इट्स मे कोज, वन ऑफ द रीजन हो सकता है. तो इट्स दीज आर द 4 टाइप ऑफ मायोसिटिस. तो यू नीड टू नो दीज 4 टाइप्स ऑफ मायोसिटिस. So you need to remember the poly, derma, IBM and toxic. These are the 4 major type of myositis. Now let's come to next one. So these are the differences. Let's see. आप चिकन पॉक्स देखना चाह रहे थे. This is the derma myositis. यहाँ पे हमारी स्किन पे रैशेस होना शुरू हो जाते हैं, मेनली इन द एल्बो एरिया, शोल्डर एरिया, नी एरिया, थाई एरिया. तो वहां पे ये मेजरली यहाँ पे शुरू हो जाता है. इसमें डर्मा मींस जो इफेक्ट्स हैं, लेकिन बहुत डिफरेंस रहेंगे. यहाँ पे मसल में इन्फ्लामेशन भी है. वो जो रैशेस आपके स्वेट की वजह से होते हैं, वहां पे मसल में इन्फ्लामेशन नहीं है. ये डर्मा इसको इसलिए बोला गया मायोसिटिस को, क्योंकि स्किन पे उसका इफेक्ट शो होने लगता है. लाइक पोलीमायोसिटिस में स्किन पे इफेक्ट शो नहीं होता है उसका, इनसाइड द मसल इज इन्फ्लेम्ड, बट इन द डर्मा वन द इफेक्ट विल शोन इन द स्किन. तो स्किन पे उसका इफेक्ट शो होने लगेगा. बाकी सारे जो सिम्टम्स है वो पोलीमायोसिटिस वाले रहते हैं, बट इफेक्ट ऑन द स्किन विल बी शोन. तो दिस इज द डर्मामायोसिटिस. हैंड्स पे, नेक पे, शोल्डर एरियाज पे, दीज आर द मेजर इफेक्ट जहां पे हमें मायोसिटिस का इफेक्ट देखने को मिलेगा. तो ये जो मेजर पार्ट्स हैं इस पे इफेक्टेड होता है. तो मेनली डिफरेंस क्या है? डर्मा और पोली में मेनली डिफरेंस है, डर्मा पे आउटर स्किन पे रैशेस आना शुरू हो जाते हैं, पोली में आपको आउटर स्किन पे रैशेस नहीं दिखेंगे. तो सिम्टम्स क्या है? मेनली हमने देख लिया कि दोनों के सिम्टम्स सेम होते हैं. इट्स सिमिलर टू पोलीमायोसिटिस, बट डिस्टिंक्टिव रैश आपको दिखना शुरू हो जाता है. एंड द सिम्टम ऑफ पोलीमायोसिटिस में मसल वीकनेस आ जाती है, एक्टिंग एंड द पेनफुल मसल्स, फाइंडिंग द हार्ड टू स्टैंड, खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, एंड द स्वेलोइंग प्रॉब्लम्स हो जाती है, एंड फीलिंग अनहैप्पी, डिप्रेस्ड ऑटोमेटिक हो जाएगा जब आप कुछ कर नहीं सकते हो. तो ये तो इसके जनरेटेड इफेक्ट्स हैं. सिमिलरली इन द केस ऑफ, यहाँ पे पार्टिकुलर एरिया डिफरेंस है, यहाँ पे थोड़ा पार्टिकुलर एरिया डिफरेंस है. रेड या पर्पल कलर के रैशेस आपको दिखेंगे, चीक्स के पास दिखेंगे, हैंड्स के पास दिखेंगे, फेस एंड आईलिड्स के पास आपको ये इफेक्ट्स दिखेंगे. तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है इफेक्टेड एरिया में एंड द स्किन रैशेस में. इसमें स्किन रैशेस होते हैं डर्मेटोमायोसिटिस में, जबकि यहाँ पे सिम्टोम ऑफ पोलीमायोसिटिस में आपको स्किन रैशेस नहीं दिखेंगे. डायग्नोस कैसे करेंगे कि मुझे पोलीमायोसिटिस है या कुछ और ही है, या फिर आप लैक्टिक एसिड समझ रहे हैं उसे? तो इसके डायग्नोस करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं. देयर आर 3 मेथड्स. ब्लड टेस्ट, जब आपको कोई भी मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड होता है तो आप ब्लड टेस्ट कराते हैं. ब्लड टेस्ट कराने के पीछे रीजन क्या होता है? वी नीड टू गेट कि जितना बॉडी के अंदर अमाउंट ऑफ सेल्स, स्पेसिफिक सेल्स का होना चाहिए, उतना है या इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है. तो ब्लड टेस्ट के थ्रू वी गेट द लेवल ऑफ एंजाइम्स एंड द लेवल ऑफ एंटीबॉडीज इन आवर ब्लड्स. सो वन ऑफ द मेथड इज द ब्लड टेस्ट. अब ब्लड टेस्ट करा के यू गेट टू नो कि इट्स अ टाइप ऑफ मायोसिटिस. ब्लड टेस्ट में रिपोर्ट्स में लाइक 6 पार्ट सीबीसी होता है, 12 पार्ट सीबीसी होता है, सेल ब्लड काउंट्स. तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स वी काउंट की लाइक आरबीसी बढ़ा है, डब्ल्यूबीसी बढ़ा है, प्लेटलेट्स बढ़ा है, या फिर कौन सा एंटीबॉडी इंक्रीज हुआ है, तो उसकी वजह से तो ब्लड टेस्ट के थ्रू वी कैन काउंट इट. नेक्स्ट इज द बायोप्सी. बायोप्सी में हम क्या करते हैं? स्पेसिफिक टिश्यू ले लेते हैं बॉडी का, जहां पे उस टिश्यू को हम एग्जामिन करेंगे, टिश्यू में इन्फ्लेमेशन चेक की जाएगी, उसके बेसिस पे ही लाइक कि कितना ब्रेकेज है, कितना इन्फ्लेमेशन है, वी गेट टू नो. इट्स नोन एज बायोप्सी. ऑटोप्सी सुना होगा आप लोगों ने, जो आप पोस्टमार्टम में होती है. व्हाट इज द रीजन ऑफ द डेथ? तो बोथ आर द सिमिलर वन. थर्ड इज द एमआरआई स्कैन. एमआरआई स्कैन एंड द इलेक्ट्रोमायोग्राफी. एमआरआई स्कैन्स में हम द मेनली सिग्नल्स देखते हैं, लोकल एनेस्थेटिक के बाद सिग्नल्स, लाइक कि आपको कहीं पे भी कुछ भी लगा तो सिग्नल्स गोज टू ब्रेन, इट्स ऑल गोज टू द केमिकल सिग्नल्स के थ्रू जाता है. तो सिग्नल सेंडिंग कैपेसिटी कितनी है उसको मेजर किया जाता है एमआरआई स्कैन एंड द इलेक्ट्रोमायोग्राफी. तो दीज आर द 3 मेथड्स जो हम डायग्नोस करने के लिए यूज करते हैं मायोसिटिस में. ट्रीटमेंट ऑफ मायोसिटिस, एग्जैक्टली द ट्रीटमेंट क्या है इस डिजीज के? कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स नहीं है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है. किसी को योगा, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज से भी ठीक हो सकता है, मे बी किसी का ठीक भी नहीं हो सकता. तो वी कैन से द एक्सरसाइज एंड द फिजियोथेरेपी, स्पेसिफिक एक्सरसाइज, योगा, फिजियोथेरेपी, द स्पेसिफिक फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज फॉर द मसल्स इंप्रूवमेंट. तो एक स्केल स्टेरॉइड्स. स्टेरॉइड्स जिस टाइम पे कोविड था, व्हेनेवर कोविड, आपने देखा होगा कि डॉक्टर आर प्रिस्क्राइबिंग स्टेरॉइड्स ओनली.
बिकॉज डायरेक्टली इंपैक्टिंग अवर बॉडी एंड हमारा हेल्थ सिस्टम इंप्रूव हो जाता है. बट व्हाट इज द साइड इफेक्ट ऑफ स्टेरॉइड्स? यू आर ससेप्टेबल टू अदर डिजीजेज. आपका इम्यून सिस्टम कम हो जाता है. आपने देखा होगा कि आफ्टर कोविड देयर वाज अ फंगल डिजीज, ब्लैक फंगल डिजीज, व्हाइट फंगल डिजीज. वो उन लोगों को हुआ जो मेजर स्टेरॉइड्स पे रखे गए थे, जो हॉस्पिटलाइज थे वो मेजर स्टेरॉइड्स पे रखे गए थे. उन स्टेरॉइड्स की वजह से उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हुआ एंड द ससेप्टेबल टू द अदर डिजीज इन दैट एनवायरनमेंट. तो फंगल डिजीज है वो सबसे ज्यादा तभी होते हैं व्हेन योर इम्यून सिस्टम इज वेरी लो एंड ससेप्टेबल टू अदर डिजीज. एड्स में क्या होता है? एड्स में द मेजर रीजन इज आवर इम्यून सिस्टम स्टार्ट, इम्यूनिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है और इम्यून सिस्टम बाकी डिजीज को ससेप्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से कभी आपको बुखार है, कभी आपको मलेरिया, कभी आपको डेंगू है, कभी आपको कुछ है. तो रेगुलर कंटिन्यूस टच में रहते हैं और जिसकी वजह से डेथ होना लाइक इट 5-10 ईयर्स के बाद डेथ हो जाती है पर्सन की, बिकॉज हाँ इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी और उसकी वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाती है. थर्ड, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स. जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस की ड्रग्स हैं, कुछ एक ड्रग्स इफेक्टिव हैं in the case of myosis also. So we can use the anti-rheumatic drugs as well for the treatment of myosis. Immunoglobulin therapy, this is known as the IG therapy. IG therapy is related to the antibodies. आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज के थ्रू we can treat this disease as well. If the patient not recover, अगर किसी से भी रिकवर नहीं होता तो इंट्रावीनस, जब हम फ्लूइड्स किसी बॉडी ग्लूकोज अपने बॉडी में लगाते हैं तो इंट्रावीनसली हम देते हैं, तो इंट्रावीनस ट्रीटमेंट शुरू करते हैं. तो इट्स मे बी वेरी फॉर डिफरेंट पर्सन. कोई फर्स्ट स्टेज में भी ठीक हो सकता है, कोई स्टेरॉइड से ठीक हो सकता है, उसके बाद नहीं थर्ड, और मे बी इट्स नॉट बी क्योरेबल. सो दीज आर द ट्रीटमेंट ऑफ मायोसिटिस. तो हमने इसमें क्या क्या देखा? व्हाट इज द मायोसिटिस एग्जैक्टली है क्या, व्हाट इज द डिफरेंट टाइप्स, व्हाट इज द कॉजेज, सिम्टम्स एंड डायग्नोसिस.